1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 17 चैप्टर 1 वर्स से 26 वर्स, 1 क्रॉनिकल्स 9 चैप्टर 10 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 1 वचन से 26 वचन तक। पहला इतिहास 9 अध्याय 10 अध्याय। हम इंग्लिश में जब पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, हिंदी में जब पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 17 1 वर्स से 26 वर्स पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। Christ prayeth to his Father to glorify him, to preserve his apostles and all other believers. These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee, as thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world. Thine they were, and thou gavest them me, and they have kept thy word. Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee. For I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me. I pray for them. I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine, and all mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one as we are. While I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou gavest me I have kept, and none of them is lost but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. And now come I to thee, and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves. I have given them thy word, and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. I pray not that thou shouldst take them out of the world, but that thou shouldst keep them from the evil. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth. Neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. And the glory which thou gavest me I have given them, that they may be one, even as we are one. I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them as thou hast loved
me. Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am, that they may behold my glory which thou hast given me. For thou lovest me before the foundation of the world. O righteous Father, the world hath not known thee, but I have known thee, and this have known that thou hast sent me, and I have declared unto them thy name, and will declare it, that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them. यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय पहले वचन से 26 वचन तक पढ़ेंगे। वो मतलब पूरा ही चैप्टर हो जाता है, पूरा अध्याय ही है वो 26 वचन तक। हम BSI बाइबल में से पढ़ रहे हैं। यीशु की महायाजकीय प्रार्थना स्वयं के लिए। फर्स्ट वर्स से यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। अपने चेलों के लिए 6 वचन से आगे, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए, और उन्होंने उनको ग्रहण किया, और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ, और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में न रहूँगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसा ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जिसे मैं संसार का नहीं, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। सभी विश्वासियों के लिए 20 वचन से आगे, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है।
मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूँ। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 9 चैप्टर 10 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्शन में से हम पढ़ेंगे। Original registers of Israel and Judah's genealogies, charge of certain Levites, Saul and Jonathan's stock. First verse say, so all Israel were reckoned by genealogies, and behold, they were written in the book of the kings of Israel and Judah, who were carried away to Babylon for their transgression. Now the first inhabitants that dwelt in their possessions in their cities were the Israelites, the priests, the Levites, and the Nethinims. And in Jerusalem dwelt of the children of Judah, and of the children of Benjamin, and of the children of Ephraim and Manasseh, Uttai the son of Ammihud, the son of Omri, the son of Imri, the son of Bani, of the children of Perez, the son of Judah, and of the Shelonites, Asaiah the firstborn and his sons, and of the sons of Zerah, Jeuel and their brethren, 690, and of the sons of Benjamin, Sallu the son of Meshullam, the son of Hodaviah, the son of Hosenuah, and Ibneiah the son of Jeroham, and Elah the son of Uzzi, the son of Mikri, and Meshullam the son of Shephatiah, the son of Reuel, the son of Ibnijah, and their brethren according to their generations, 956. All these men were chief of the fathers in the house of their fathers, and of the priests Jedaiah and Jehoiarib and Jachim and Jachin and Azariah the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the son of Mirayoth, the son of Ahitub, the ruler of the house of God, and Adaiah the son of Jeroham, the son of Pashur, the son of Malkijah, and Maslaiah, the son of Adiel, the son of Jahzerah, the son of Meshullam, the son of Meshelemith, the son of Immer, and their brethren, heads of the house of their fathers, 1,760, very able men for the work of the service of the house of God. And of the Levites, Shemaiah the son of Hashub, the son of Ezrikam, the son of Hashabiah, of the sons of Merari, and Bakbakkar, Heresh, and Galal, and Mattaniah, the son of Micah, the son of Zikri, the son of Asaph, and Obadiah, the son of Shemaiah, the son of Galal, the son of Jeduthun, and Berechiah, the son of Asa, the son of Elkanah, that dwelt in the villages of the Netophathites,
And the porters were Shallum and Akub and Talmon and Ahiman and their brethren. Shallum was the chief, who hitherto waited in the king's gate eastward. They were porters in the companies of the children of Levi, and Shallum the son of Kore, the son of Ebiasaph, the son of Korah, and his brethren of the house of his father, the Korahites were over the work of the service, keepers of the gates of the tabernacle, and their fathers, being over the host of the Lord, were keepers of the entry. And Phinehas, the son of Eleazar, was the ruler over them in time past, and the Lord was with him. And Zechariah, the son of Meshelemiah was porter of the door of the tabernacle of the congregation. All these which were chosen to be porters in the gates were 212. These were reckoned by their genealogy in their villages, whom David and Samuel the seer did ordain in their set office. So they and their children had the oversight of the gates of the house of the Lord, namely the house of the tabernacle, by wards. In 4 quarters were the porters toward the east, west, north, and south, and their brethren which were in their villages were to come after 7 days from time to time with them. For these Levites, the 4 chief porters were in their set office, and were over the chambers and treasuries of the house of God. And they lodged round about the house of God, because the charge was upon them, and the opening thereof every morning pertained to them. And certain of them had the charge of the ministering vessels, that they should bring them in and out by tale. Some of them also were appointed to oversee the vessels and all the instruments of the sanctuary, and the fine flour, and the wine, and the oil, and the frankincense, and the spices. And some of the sons of the priests made the ointment of the spices. And Mattithiah, one of the Levites, who was the firstborn of Shallum the Korahite, and had the set office over the things that were made in the pans, and other of their brethren of the sons of the Kohathites were over the shewbread, to prepare it every Sabbath. And these are the singers, chief of the fathers of the Levites, who remaining in the chambers were free, for they were employed in that work day and night. These chief fathers of the Levites were chief throughout their generations. These dwelt at Jerusalem. And in Gibeon dwelt the father of Gibeon, Jehiel, whose wife's name was Maachah, and his firstborn son Abdon. Then Zur and Kish, and Baal, and Ner, and Nadab, and Gedor, and Ahio, and Zechariah, and Mikloth begat Shimeam. And they also dwelt with their brethren at Jerusalem, over against their brethren. And Ner begat Kish, and Kish begat Saul, and Saul begat Jonathan, and Malchishua, and Abinadab, and Eshabal. And the son of Jonathan was Meribal, and Meribal begat Micah. And the sons of Micah were Pithon, and Melech, and Tahriah, and Ahaj begat Jara, and Jara begat Alimeth, and Azmaveth.
And Jimri begat Moja, and Moja begat Binia, and Rephaiah his son, Eliasa his son, Azel his son. And Azel had 6 sons, whose names are these: Azrikam, Bokheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan. These were the sons of Azel. Chapter 10. Saul's death. The Philistines triumph over him. The kindness of the men of Jabesh Gilead to Saul and his sons. First verse say, now the Philistines fought against Israel, and the men of Israel fled from before the Philistines and fell down slain in Mount Gilboa. And the Philistines followed hard after Saul and after his sons. And the Philistines slew Jonathan and Abinadab and Malchishua, the sons of Saul. And the battle went sore against Saul, and the archers hit him, and he was wounded of the archers. Then said Saul to his armor bearer, draw thy sword and thrust me through therewith, lest this uncircumcised come and abuse me. But his armor bearer would not, for he was sore afraid. So Saul took a sword and fell upon it. And when his armor bearer saw that Saul was dead, he fell likewise on the sword and died. So Saul died, and his 3 sons and all his house died together. And when all the men of Israel that were in the valley saw that they fled, and that Saul and his sons were dead, then they forsook their cities and fled, and the Philistines came and dwelt in them. And it came to pass on the morrow, when the Philistines came to strip the slain, that they found Saul and his sons fallen in Mount Gilboa. And when they had stripped him, they took his head and his armor, and sent into the land of the Philistines round about to carry tidings unto their idols and to the people. And they put his armor in the house of their gods, and fastened his head in the temple of Dagon. And when all Jabesh Gilead heard all that the Philistines had done to Saul, they arose all the valiant men, and took away the body of Saul and the bodies of his sons, and brought them to Jabesh, and buried their bones under the oak in Jabesh, and fasted 7 days. So Saul died for his transgression which he committed against the Lord, even against the word of the Lord, which he kept not, and also for asking counsel of one that had a familiar spirit to inquire of it, and inquired not of the Lord. Therefore he slew him, and turned the kingdom unto David the son of Jesse. पहला इतिहास की पुस्तक 9 अध्याय 10 अध्याय। हम 9 अध्याय पहले पढ़ेंगे। पहले वचन से, बंधुआई से लौटने वाले लोग। पहले वचन से, इस प्रकार सब इस्राएली अपनी अपनी वंशावली के अनुसार जो इस्राएल के राजाओं के वृत्तांत के पुस्तक में लिखे हैं गिने गए। यहूदी अपने विश्वासघात के कारण बंदी बनाकर बेबीलोन को पहुंचाए गए। बंधुआई से लौटकर जो लोग अपनी अपनी निज भूमि अर्थात अपने नगरों में रहते थे, वे इस्राएली याजक, लेवीय और मंदिर के सेवक थे। यरूशलेम में कुछ यहूदी, कुछ बिन्यामीनी और कुछ एप्रैमी और मनश्शेई रहते थे, अर्थात यहूदा के पुत्र पेरेस के वंश में से अम्मीहूद का पुत्र उत्तई, जो उमरी का पुत्र और इमरी का पोता और बानी का परपोता था। शिलोइयों में से उसका जेठा पुत्र असाया और उसके पुत्र जेरह के वंश में से योएल और इनके भाई, ये 690 हुए। फिर बिन्यामीन के वंश में से सल्लू, जो मशुल्लुम का पुत्र, होदव्या का पोता और हसनुआ का परपोता था। यब्रिया
जो यरोहाम का पुत्र था, और एला जो उज्जी का पुत्र और मिक्री का पोता था, और मशुल्लाम जो शपत्या का पुत्र रूएल का पोता और यबनिया का परपोता था, और इनके भाई जो अपनी अपनी वंशावली के अनुसार मिलकर 956 थे। ये सब पुरुष अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार पितरों के घरानों में मुख्य थे। यरूशलेम में रहने वाले याजकों में से यदाया, यहोयारिब और याकीन और अजरिया जो परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिल्किया का पुत्र था, यह मशुल्लुम का पुत्र, यह सादोक का पुत्र, यह मरायोत का पुत्र, यह अहीतूब का पुत्र था, और अदाया जो यरोहाम का पुत्र था, यह पशहूर का पुत्र, यह मल्किया का पुत्र, यह मासई का पुत्र, यह अदोएल का पुत्र, यह जेरा का पुत्र, यह मशुल्लाम का पुत्र, यह मशिल्लित का पुत्र, यह इम्मेर का पुत्र था। और इनके भाई थे जो अपने अपने पितरों के घरानों में 1760 मुख्य पुरुष थे। वे परमेश्वर के भवन की सेवा के काम में बहुत निपुण पुरुष थे। यरूशलेम में रहने वाले लेविया 14 वचन से आगे। फिर लेवियों में से मरारी के वंश में से शमाया जो हशूव का पुत्र, अजरीकाम का पोता और हशव्या का परपोता था, और बकबक्कर, हेरेश और गलाल और आसाप के वंश में से मतन्या जो मिका का पुत्र और जिक्री का पोता था, और ओबद्या जो शमाया का पुत्र, गालाल का पोता और यदूतून का परपोता था, और बेरेक्या जो आसा का पुत्र और इल्काना का पोता था, जो नतोपाइयों के गांवों में रहता था। यरूशलेम में रहने वाले मंदिर के द्वारपाल 17 वचन से आगे। द्वारपालों में से अपने अपने भाइयों सहित शल्लूम, अक्कोब, तलमोन और अहीमान, इनमें से मुख्य तो शल्लूम था, और वह अब तक पूर्व की ओर राजा के फाटक के पास द्वारपाली करता था। लेवियों की छावनी के द्वारपाल यही थे। शल्लूम जो कोरे का पुत्र, एबियासाप का पोता और कोरह का परपोता था, और उसके भाई जो उसके मूल पुरुष के घराने के अर्थात कोरही थे, वे इस काम के अधिकारी थे कि वे तंबू के द्वारपाल हो। उनके पुरखा तो यहोवा की छावनी के अधिकारी और प्रवेश द्वार के रखवाले थे। प्राचीन काल में एलियाजार का पुत्र पिनहास, जिसके संग यहोवा रहता था, वह उनका प्रधान था। मेशल्लेमिया का पुत्र जकरिया मिलाप वाले तंबू का द्वारपाल था। ये सब जो द्वारपाल होने को चुने गए वे 212 थे। ये जिनके पुरखाओं को दाऊद और शमूएल दर्शी ने विश्वास योग्य जानकर ठहराया था, वे अपने अपने गांव में अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने गए। अतः वे और इनकी संतान यहोवा के भवन अर्थात तंबू के भवन के फाटकों का अधिकार बारी बारी रखते थे। द्वारपाल पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशा की चौकसी करते थे, और उनके भाई जो गांवों में रहते थे, उनको 7-7 दिन के बाद बारी बारी से उनके संग रहने के लिए आना पड़ता था, क्योंकि चारों प्रधान द्वारपाल जो लेवीय थे, वे विश्वास योग्य जानकर परमेश्वर के भवन की कोठरियां और भंडारों के अधिकारी ठहराए गए थे। वे परमेश्वर के भवन के आसपास इसलिए रात बिताते थे कि उनकी रक्षा उन्हें सौंपी गई थी, और प्रतिदिन भोर को उसे खोलना उन्हीं का काम था। अन्य लेवीय 28 वचन से आगे। उनमें से कुछ उपासना के पात्रों के अधिकारी थे, क्योंकि ये पात्र गिनकर भीतर पहुंच जाए और गिनकर बाहर निकाले भी जाते थे। उनमें से कुछ सामान के और पवित्र स्थान के पात्रों के और मैदे, दाख, मधु, तेल, लोबान और सुगंध द्रव्यों के अधिकारी ठहराए गए थे। याजकों के पुत्रों में से कुछ सुगंध द्रव्यों के मिश्रण तैयार करने का काम करते थे। मतिल्या नामक एक लेवीय जो कोरही शल्लूम का जेठा था, उसे विश्वास योग्य जानकर तवों पर बनाई हुई वस्तुओं का अधिकारी नियुक्त किया गया था। उसके भाइयों अर्थात कहातियों में से कुछ तो भेंट वाली रोटी के अधिकारी थे कि हर एक विश्राम दिन को उसे तैयार किया करे। ये गवैये थे जो लेवीय पितरों के घरानों में मुख्य थे और मंदिर के कमरों में रहते और अन्य सेवा के काम से मुक्त थे, क्योंकि वे रात दिन अपने काम में लगे रहते थे। ये ही अपनी अपनी पीढ़ी में लेवियों के पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष थे। ये यरूशलेम में रहते थे। राजा शाऊल की वंशावली।
35 वचन से आगे। गिबोन में गिबोन का पिता येयेल रहता था, जिसकी पत्नी का नाम माका था। उसका जेठा पुत्र अबदोन हुआ। फिर सूर, कीश, बाल, नेर, नादाब, गदोर, अहियो, जकरिया और मिल्कोत से शिमाम उत्पन्न हुआ। और ये भी अपने भाइयों के संग यरूशलेम में रहते थे। नेर से कीश, कीश से शाऊल और शाऊल से योनातान, मलकीश, अबीनादाब और एशबाल उत्पन्न हुए। और योनातान का पुत्र मरिब्बाल हुआ और मरिब्बाल से मीका उत्पन्न हुआ। मीका के पुत्र पितोन, मेलेक, तहे और आहाज से यारा और यारा से अलेमेत, अजमावेत और जिमरी से मूसा और मूसा से बिना उत्पन्न हुआ और बिना का पुत्र रपाया हुआ। रपाया का एलासा और एलासा का पुत्र आसेल हुआ। आसेल के 6 पुत्र हुए, जिनके ये नाम थे, अर्थात अजरीकाम, बोकरू, यशमाएल, शारिया, ओबद्या और हनान। आसेल के ये ही पुत्र हुए। राजा शाऊल की मृत्यु। 10 अध्याय पहले वचन से। पलिश्ती इसराइलियों से लड़े और इसराइली पलिश्तियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। पर पलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और पलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकीश को मार डाला। शाऊल के साथ घमासान युद्ध होता रहा और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया और वह उनके कारण व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, कहीं ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मेरा ठट्टा करे। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने भयभीत होकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि शाऊल मर गया है, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर मर गया। यूं शाऊल और उसके 3 पुत्र और उसके घराने के सब लोग एक संग मर गए। यह देख कर कि वे भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई में रहने वाले सब इस्राएली मनुष्य अपने अपने नगर को छोड़कर भाग गए और पलिश्ती आकर उनमें रहने लगे। दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे गए लोगों के माल को लूटने आए, तब उनको शाऊल और उसके पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। तब उन्होंने उसके वस्त्रों को उतार उसका सिर और हथियारों को ले लिया और पलिश्तियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवता और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाए। तब उन्होंने उसके हथियार और अपने देवालय में रखे और उसकी खोपड़ी को दागोन के मंदिर में लटका दिया। जब गिलाद के याबेश के सब लोगों ने सुना कि पलिश्तियों ने शाऊल से क्या क्या किया है, तब सब शूरवीर चले और शाऊल और उसके पुत्रों के शवों को उठाकर याबेश में ले आए और उनकी हड्डियों को याबेश में एक बांज वृक्ष के नीचे गाड़ दिया और 7 दिन तक उपवास किया। यूं शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाले से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से न पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मार्क 14 चैप्टर 43 वर्स से 52 वर्स, नंबर्स 36 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय 43 वचन से 52 वचन तक। गिनती की पुस्तक 36 अध्याय। हम 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान अपने अकेले में 2 years बाइबल रीडिंग प्लान अकेले में व्यक्तिगत पर्सनल टाइम में बैठकर पढ़ेंगे। जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो इन अध्याय में से जो वचन है, परमेश्वर हमको कुछ सुधार लाने के लिए, कुछ मदद करने के लिए, कुछ सलाह मशविरा करने के लिए या कुछ हमारे आदतों को बदलने, सीधाई के रास्ते देने के लिए इस्तेमाल करेगा। हमने उन वचनों को नोट्स बनाकर हमारे पास लिख के रख लेना है और फिर जैसे जैसे हम रोज़ का जीवन जीते हैं, इन्हीं नोट्स के अंदर लिखे हुए वचनों को हमने फिर
चलना है, उसके आधार से हमारा जीवन वचन के द्वारा चलाया जाना चाहिए। जब ऐसा हम करते हुए 2 साल के अंत में पहुंचेंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा ढला हुआ व्यक्ति होकर हम निखर कर आएंगे। इस प्रकार से परमेश्वर का हम उपयोग करने वाला बर्तन बन जाएंगे। परमेश्वर हमको ऐसा बर्तन उठा लेगा, हमको उसके राज्य के काम में लगा देगा। जैसा ये हो सकता है, ये संभव करने के लिए परमेश्वर ने हमको अनुग्रह दिया है। हमने निश्चित इस अनुग्रह का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।